Every beautiful filmmaking is dedicated to keep in the traditional thriller ceremony followed by a cake cutting because memories are free and it makes them क्या? हाँ वो झाकेगा, वो गेट है ना, गेट है, सबका फोटो है सबका।
आसन है यहाँ पे। दोनों पढ़ो, ले लो। अभी नहीं, कटने पर ना। अरे मुंह पे मत मारिए, उन्हें मारिए। नो नो तुम लोग नहीं जाओगे? जाओ। बैलून बैलून बैलून। तुम चलो, उन लोग को हटाओ, उन लोग को हटाओ वहाँ से, जाओ उन लोग को हटाओ। Hello. Farewell. One of the most emotional days or emotional moment of a student's life. I do understand that a student has a numerous expectation from the school. Because this is the place that helps you better grow up. And I'm not ashamed to be sorry, because I was unable to give you the experience that you really had to face. Your schooling days could have been much more better. But there were some other issues that the school could not stand up to the expectations, and we could not provide the exact environment that you should have got. Rather than all these stories, from tomorrow onwards, you will be facing a new world. This is the initial stage of your life, your board exams, the most important part. You still have time to focus on your studies. And whatever the result is, do not lose hope, because a person learns from his failure itself. And in this world of social media, you have always gone through numerous reels and videos where a person who is very past his 10th exam in 3rd division was really past his exams, both exams in 3rd division, have secured the post of the topmost official rank as IAS. So ranks and marks doesn't matter. What matters is the discipline, your focus, your initiative. What matters is your discipline, your dedication, your focus. I would like to go to English, they would not take it. They would not
not taken one chapter in English. I think in class 9. Have you gone through it? उसका जो थीम था ना, उसका जो समय था उसको थोड़ा एक बार रिकॉल करना. Life will not give you a second chance. You may get a response. So don't regret. Choose what you feel good, what you can do. Don't get forced or don't get impacted by someone else. ठीक है? There would be numerous stages in your life where you yourself will be the sole person to take decisions. Have the courage, have the guts to take it. Have the courage to speak for the truth and fight for your right. I hope that after your board exams, there's a request from my end. If you agree to my request, please support me. Do not go for college studies and in class 11. If you really want to enjoy your school life, go to a proper school where you get a good education, where you get a good environment. Over there you learn what schooling really is. If you are planning to go for NET or preparing for NET to go to quota or something like that, please avoid it, because that will ruin your life. My experience, your teacher's experience, the examiners who have come for external practicals, everybody says a regular student is far more better than a unconditional student. अगर पेरेंट्स से प्रेशर है कि नहीं बेटा बाहर जाके पढ़ाई करो, कोटा में जाओ, कहीं और जाओ, किसी स्कूल में नाम लिखवाओ, मत करना. दिस इज माय पर्सनल सजेशन, बिकॉज यू विल रिग्रेट फॉर इट. ठीक है? स्टडी हार्ड. You still have few days. Give a brush up to your revisions. The school is always with you. The school will support you in whatever the school can. Or whatever experiences you had from the school or whatever expectations we could not fulfill yours, I am really sorry for it. Thank you. Now I would like to call Santosh sir on the stage. हेलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. आज फेयरवेल पार्टी को कहते हैं विदाई दिन, और विदाई दिन जो होता है इसमें खुशी भी होती है और कहीं न कहीं जो है एक गम भी होता है. खुशी होती है कि आज के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और गम होता है कि कहीं न कहीं जो है पुराने रिश्ते छूटने का गम होता है. जहां हमने अपना जीवन के 10 साल दिए हैं, अब ये कह सकते हैं कि बचपन से लेके अभी तक जहां आप बड़े हुए हैं, वहां से कहीं न कहीं आज के बाद आप लोग जो है एक नई दुनिया में जाएंगे. मैं संपूर्ण लोक कल्याण परिवार की तरफ से आप लोगों को आने वाले नए जीवन की ढेर सारी बधाइयां दूंगा. चूंकि इस समूह से मेरा जो नाता है वो पिछले 13 साल का रहा है. एलके इंटरनेशनल स्कूल एक छोटा सा सपना जो हमारे परम आदरणीय भूतपूर्व चेयरमैन स्वर्गीय श्री आनंद सर ने सजाया था, हम लोगों ने इसकी नींव डाली थी, और तकरीबन आज आप ये कह सकते हैं 11 साल सक्सेसफुल तरीके से हम इस विद्यालय को रन कर रहे हैं. तो कहीं न कहीं हमारे सामने आप में से बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे से थे, हमारे सामने से शुरुआत की और आज आप लोग इतने बड़े हो गए. तो दिल तो बिल्कुल भर आता है. जिस तरह से आदमी कहता है एक शादी में एक बेटी की विदाई होती है, तो एक गार्जियन को, एक पिता को जितनी खुशी होती है उतना ही उसको गम भी होता है कि वो बेटी जिसने मेरे यहाँ अपना सारा बचपन बिताया,
जो मेरे आंगन में खेली कूदी पली बड़ी, आज कहीं न कहीं एक नए रिश्ते में बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं, आप लोग आगे जो कुछ भी करेंगे, जो भी कॉलेज में जाएंगे, आप ही लोगों में से कोई आगे चल के डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जो है IAS बनेगा, IPS बनेगा। लेकिन ये जो 10 साल आपने बिताए हैं, ये आपके जीवन के सबसे गोल्डन ईयर्स साबित होंगे। आदमी जब छोटा होता है, जब बच्चा, तो सोचता है कब मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होने के बाद लगता है कि बचपना ही सबसे बढ़िया था। तो और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं खुद, मेरे फादर एक टीचर थे, तो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से ही आता हूँ, टीचिंग फैमिली से ही आता हूँ। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जीवन में माँ बाप के बाद अगर एक बच्चे के जीवन में सबसे बड़ा अहमियत अगर कोई रखता है तो वो एक टीचर रखते हैं। टीचर जो होते हैं वो समाज की बुनियाद, देश का भविष्य उनके हाथ में होता है, क्योंकि ये जो 10 साल इन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ये आगे चल के एक बहुत बड़ा फाउंडेशन इन्होंने आपका तैयार किया है। अब इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना आपके ऊपर है। कोई 2 मंजिले की बिल्डिंग बनाएगा, कोई 4 मंजिले की बनाएगा, तो कोई 30 मंजिले का टावर भी बना सकता है। तो आप लोगों से यही कहेंगे, जीवन में आप चाहे जहां कहीं भी रहिए, जब भी जहां भी आपके शिक्षक से आपकी मुलाकात हो, कम से कम एक बार झुक के आप अगर प्रणाम भी कर देंगे तो टीचर के लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है। और टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के दिलों में जिंदा रहता है। एनी टाइम कल को आप सक्सेस होंगे तो आपके साथ साथ आपके टीचर का नाम अपने आप आ जाता है। तो बहुत ज्यादा मैं समय आप लोगों को नहीं लूंगा, एक बार फिर से आप लोगों को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से एक बेटी के लिए उसके माई का दरवाजा हमेशा खुला होता है, आप लोगों के लिए लोक कल्याण इंटरनेशनल स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप जब कभी मिलने आना चाहे आप आ सकते हैं। आपका वैसा ही स्वागत होगा जैसे आज की तारीख में हो रहा है। इतना ही बोलने वाली को जो है समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to call Siddharth sir on the stage. सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग है। बड़ा मुश्किल है कुछ कह पाना। हमारे प्रिंसिपल सर सब कुछ कह ही दिए हैं। प्रिंसिपल सर हमारे सब कुछ कह ही दिए हैं। एक चीज आपको आगे से ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत अच्छी बात सर ने कहा है कि 11-12 आप रेगुलर, आप कॉलेजेस या कोटा, बैंगलोर, ये कहीं भी आप नेट की तैयारी के लिए जा रहे हो, आप IIT की तैयारी के लिए जा रहे हो, उससे बेहतर है। हम लोग का यही एक्सपीरियंस रहा है कि आप रेगुलर स्कूलिंग कीजिए, कहीं से भी आप 11-12 रेगुलर कीजिए। वो एज कंपेयर टू जो आप दूर जाएंगे ना, उससे ज़्यादा बेहतर। उससे मैंने देखा है कि डिस्ट्रक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअल जो आप सक्सेस करेंगे वो रेगुलर आप स्कूल अटेंड करने से ही करेंगे। ये फैक्ट है, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है। ये बात आपको सर ने कह ही दिया है। देखिए, आप लोग का एक बहुत लंबा जर्नी रहा है जो स्कूल के साथ। शायद यहाँ पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से और प्रिंसिपल सर से पहले से, कुछ बच्चों ने यहाँ एक लंबा जर्नी इस स्कूल के साथ आपने गुजारा है। जैसे कुछ बच्चों को मैंने पूछा था कि कौन से क्लास से कौन कब से यहाँ है, तो आप ही में से बहुत बच्चों ने बताया था कि सर मैं 3 क्लास से हूँ,
मैं 4 क्लास से हूँ, सर मैं 5 क्लास से हूँ। तो अब देखिए, हम सारे शिक्षकों ने मिलकर, संतोष सर ने बहुत बड़ी बात कहा है आपके लिए कि हम लोगों ने ढांचा तैयार कर दिया है, बुनियाद हम लोगों ने आपका बना दिया है। अब इसके ऊपर कितना मंजिल आप ले जाएंगे, मतलब सर का ये था कि आप किस डायरेक्शन में अपने लाइफ को अब यहाँ से मूव करेंगे, अब वो आपके हाथ में। ऐसे भी आप धीरे धीरे अब 10th में पहुंच गए। 9th-10th के बच्चों को कहा ही जाता है कि कुछ मैच्योरिटी आ जाता है। पूरा मैच्योरिटी तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक समझदारी अपने लाइफ के बारे में आ जाता है। देखिए एक चीज और है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल नियर बाय है, ठीक है। अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से जो भी आपके टीचर्स ने आपको बताया है, कहा है, पढ़ाया है, उसको एक बार रिवाइज कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कई बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट, अभी देखिए लास्ट टाइम चल रहा है, प्रैक्टिस सेट बनाइए, टाइम को मैनेज कीजिए। कई बार मैं देखता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे आते हैं, सर मेरा 10 नंबर का छूट गया, सर मेरा 15 नंबर का छूट गया, मेरा 8 नंबर का छूट गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सेट प्रैक्टिस करो। सेट प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि मैं मेरे पास 3 घंटा है, मैं 3 घंटा में सॉल्व करूँ। थोड़ा राइटिंग स्पीड को भी देखिए। अपना बोर्ड का जो कॉपी है, इंटरनेट वगैरह पे भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे आपका अट्रैक्टिव कॉपी हो, क्योंकि अब तो बहुत शॉर्ट टाइम रह गया आपको। रीडिंग ए वीक 17 तारीख से स्टार्ट है ना, आई एम नॉट रॉन्ग, 17 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो वंस अगेन दिस इज यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और याद तो सबका रहेगा ही, हम लोग का खैर रिश्ता और नाता ही ऐसा है। आप जाएंगे, आपके पहले वाले भी गए, उनके पहले वाले भी गए, आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे 9 या 10 से 10 में, ठीक है। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा ये बैच, बहुत अनुशासन के साथ। हाँ कुछ बच्चे हैं, और मैं जो प्राइम वर्ड आपको बोलता हूँ, मेरा सिग्नेचर वर्ड है आपके लिए, उसको आप याद जरूर रखिएगा। मेरा जो प्राइम सिग्नेचर वर्ड है इडियट, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। वो हमेशा आपको याद कराएगा मेरा इडियट वर्ड। देखिए आपके साथ गुजारा हुआ हर पल हम लोग के तार जिंदगी में हम लोग के साथ रहता। हम लोग अपने लाइफ का, अगर हम लोग अपने लाइफ का 8 घंटा 10 घंटा यहाँ गुजार रहे हैं, तो नौकरी के साथ साथ आपके साथ एक लगाव भी होता है, जो कि हमारे लाइफ का एक पार्ट है। तो आप लोग सभी को आने वाले आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिस उम्मीद के साथ आपके माता पिता, देखिए हर एक स्टूडेंट से उम्मीद होता है, सबसे ज्यादा उम्मीद होता है आपके माता पिता को। ये नहीं होता माता पिता को उम्मीद कि आप कल सक्सेसफुल हो जाइएगा तो उनको रिटर्न में आप उनको क्या देंगे, उनको आप हवाई जहाज में बैठा देंगे कि आप मर्सिडीज में बैठा देंगे। पेरेंट्स का उम्मीद बस आपसे यही है कि आपका लाइफ आगे का जो हो वो तकलीफ भरा ना हो, खुशहाली भरा आपका जिंदगी गुजरना चाहिए। ये पेरेंट्स का भी आपके साथ वो होता है, लगाव होता है, और उनका समर्पण आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक पेरेंट्स का स्ट्रगल कितना होता है अपने बच्चे के लिए। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आती है अपने देश की। आप देश के नागरिक हैं, जब भी मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले, अपने देश के लिए, अपने भारत के देश की मिट्टी के लिए उसका कर्ज भी हमेशा याद रखें, ठीक है।
चलिए once again wishes you good luck and best luck for your examination. Thank you. Please come on the stage, Meenam, and share a few words with us. गुड मॉर्निंग। मेरा सब विशेषण रहा नौकरी के साथ साथ आप लोगों के साथ नौकरी इस तरफ आप लोगों से लगावे और यही आप लोगों से लगाव मुझे यहाँ खिंचलाई। मैं आशा करूँगी आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट करेंगे। मेरा कहना यही है कि जहाँ कहीं भी जाइएगा आप यहाँ से कभी भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि अपने माता पिता का सर नीचा हुए होना पाए और ये स्कूल का नाम हो गया है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप कितने अच्छे स्कूल से पढ़ाई किए हैं। जैसे सर लोगों ने कहा कि कभी भी हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें ऐसा ये नहीं करना है कि मैं ऐसे स्कूल में ऐसे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं इंजॉय करूँगा। अभी ये 10th के बाद मस्ती करने का टाइम खत्म हो रहा है और अभी से 11th-12th में जो है हमारा करियर करने का समय होता है, तो इस समय को आप लोग सीरियसली लीजिएगा और अच्छी तरह से स्कूलिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सीढ़ी ही है ऊपर जाएंगे, समझ रहे हो आप सभी। तो और हमेशा सब याद रखोगे। कुछ स्टूडेंट्स ने आदित्य सर को भी इनवाइट किया था। थैंक यू मीना मैम फॉर कमिंग अप टुडे। कुछ स्टूडेंट्स ने आदित्य सर को भी इनवाइट किया था, बट आप भी समझते हो कि ये एक सेशन एंडिंग है, एग्जाम्स का दौर है, तो वो आ नहीं पाए। उनका एक मैसेज है सभी के लिए, दे सॉरी दैट यू कुड नॉट टर्न अप टुडे, बट उनका यही है कि आप उनके बेस हो, डू समथिंग that recognizes you as well as his identity, जिससे आपकी भी पहचान बने, उनकी भी पहचान बने। ठीक है? Yes, and this best wishes to you for exams. तो बैठ जाइए अब दिल थाम के, क्योंकि आ रही है क्लास 9 की लड़कियां स्टेज पे धमाल मचाने। सो प्लीज वेलकम क्लास 9 गर्ल्स ऑन द स्टेज फॉर अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। Thank you.
जो कभी कभी ये सोच करना दिल भावुक हो जाता है। जो भी जैसा भी है, जैसे सर ने कहा, जो बीता समय वो एक बेस था, आधार था, अनुभव सीखने का उम्र था। अब जो यहाँ से आप जा रहे हैं उसमें आपकी मेहनत का, आपका लगन का मतलब जैसा आप मेहनत कीजिएगा फिर उसी अनुसार मिलेगा। यहाँ तक जो टीचर बोलते थे आप उसके अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार। लेकिन यहाँ से अब अपने अनुसार जैसा भी हो। आज इसी फेयरवेल पार्टी के शुभ अवसर पर मैं एक छोटा सा सॉन्ग मैं आप लोगों के समर्पित करना चाहता हूँ।
Thank you.
आज आप विद्यालय के
और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी। कुछ बच्चे थोड़े से बदमाशी भी किए, लेकिन पढ़े, और आशा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले जीवन में। और मेरा भगवान की तरफ से और भगवान से प्रार्थना है कि आपको बहुत शक्ति दे, ताकि आप अपने एग्जाम को सफलतापूर्वक पास कर सकें। हम आपको पहले एक कविता सुनाना चाहेंगे आपके संघर्ष और जीवन के लिए, आने वाले जो संघर्ष मेरा आपका जीवन है उसके लिए। तो मेरी कविता को पहले ध्यान से सुनिएगा। अभी क्लासेस नहीं चल रही है कि आप पता कर रहे हैं, ओके? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हक रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जोर नहीं उतने सड़ने की ताकत है। इस जग में जितने जोर नहीं उतने सड़ने की ताकत है। तानों के शोर बदलकर सच कहने की आदत है। जब झूठ जैसी हाथरा हुआ अब झूठने का शौक नहीं। झूठ जैसी हाथरा हुआ अब झूठने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए आप लोग साथ सुनाते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप लोग?
सबको भी खुशी खुशी है नाटक करो लास्ट में ये बहुत सारी आप लोग के लिए मैं पेश करता हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। Now it's time to taste direct comedian and acting skills. Welcome to unpredictable part of today's game. Participants will choose a task and perform it on the stage. No skills, no preparation, just pure talent and courage. So please come on the front and choose one sheet. पहले वहाँ से So let's start गिरा दे लिए जोक मारेगा मार दे पड़ा मार निकला उससे
हम